Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know, we were doing the lesson 9 of science book of standard 6. The name of the book is A New Approach to Science, and we were doing the lesson 9. The title of the lesson was The Living Organisms, Characteristics and Habitats. We have already done a part of the chapter, part 1 of the chapter. Today we will be doing part 2 of the chapter, and that starts with some terrestrial habitats. Okay, I have already told you terrestrial means on land, okay, and habitat means the environment in which a particular organism is living, in which he has adjusted to live, where he is getting all the requirements of his life. So we will be doing some terrestrial habitats. Desert. This habitat includes vast area of land with sand and little or no vegetation. They also get very little rain, so organisms which live here, they have to cope up with hot, dry and adverse climate conditions. Adaptation in plants. Plants that live in dry weather conditions are scarce water situations like desert are known as xerophytic plants. Some examples of such plants are cactus, acacia, rose plant, babool and palm tree. Let us study about cactus in detail. The stem of cactus is fleshy and succulent, so that it can store water to be used in dry conditions. The leaves are transformed into spines to prevent loss of water by minimizing the surface area for evaporation. Transpiration is the process of giving out water vapor from the leaf of plant into the surroundings. The function of leaves producing food is performed by the stem. That is why its stem is green in color. The roots are long and go deep in the ground to absorb water. Adaptation in animals. Desert animals have to adapt to intense heat and lack of water. For example, camel, its terrestrial adaptations are the body structure of a camel helps it to survive in desert conditions. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand. They do not sweat, their dung is dry, they excrete small amount of urine. Camels can live for many days without water because they lose very little water from their bodies. It has no layer of fat under the skin. It has large feet to spread the load. There are some desert animals which do not have long legs. Rats and snakes are the examples of such animals. During the day they stay deep in burrows to stay away from the intense heat and come out only at night. ठीक है, तो हम लोग जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं, ज़मीन पे जो हैबिटेट्स हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है डेजर्ट. हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट में बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है. दिन के समय में बहुत ही हॉट एंड ड्राई होता है और रात के समय में इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड हम लोग जानते हैं डेजर्ट में. और बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है. डेजर्ट क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा एरिया ऑफ लैंड होता है जिसमें कि वो पूरा किससे भरा है? सैंड से भरा हुआ है. ठीक है, और बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं, पेड़ पौधे वहाँ बहुत ही कम रहते हैं डेजर्ट में, और वो पूरे बालू से भरा हुआ रहता है और वहाँ बहुत कम बारिश होती है. इसीलिए जो भी प्राणी वहाँ पे रहते हैं उनको उसी हिसाब से कोप अप करना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो गर्म सूखी क्लाइमेट कंडीशन में वो रह सके और एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन हो, कभी अचानक से बारिश हो या रात में ठंड हो, ऐसे मौसम में भी वो जो एडजस्ट कर सके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे एडजस्ट करके रहते हैं. तो सबसे पहले अडेप्टेशन प्लांट में बता रहा है कि प्लांट ने अपने आप में क्या चेंजेस ले आए हैं वहाँ के प्लांट्स ने, ताकि वो उस सूखे और गर्म वातावरण में वो रह सके. ठीक है, तो जो प्लांट्स ऐसे वेदर कंडीशन में रहते हैं, ऐसे मौसम में रहते हैं जहाँ बहुत ही गर्मी है और बारिश बहुत ही कम है, पानी बहुत कम है, वैसे प्लांट्स को ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, ऐसे प्लांट्स को ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं जो डेजर्ट में ही पाए जाते हैं. एग्जाम्पल कैसा है इसका? कैक्टस. सब लोग जानते हैं ना, तरह तरह के कैक्टस हम लोग अपने आसपास भी देखे हैं. एकाशिया, ठीक है, एकाशिया प्लांट एक है. रोज़ प्लांट भी वहाँ पे रह पाता है. रोज़ प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो डेजर्ट में हमें बहुत कम दिखाई देता है, फिर भी जो लोग डेजर्ट एरिया के पास रहते हैं वो लोग रखते होंगे रोज़ प्लांट. बबूल का बहुत बड़ा सा पेड़ होता है. बबूल के पेड़ में कांटे भी होते हैं. बबूल ट्री एंड पाम ट्री हम लोग ऐसे भी देख पाते हैं यहाँ पे भी, और डेजर्ट में भी मिलता है. ठीक है, तो इसमें हमें कैक्टस के बारे में बताया गया कि कैक्टस में कैसा अडॉप्टेशन है. देखिए, आपने कभी कैक्टस देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसके जो पत्ते का शेप है, एक्चुअली तो उसमें पत्ता कुछ बचा नहीं, वो मोटा सा स्टेम जैसा दिखाई देता है,
हाँ, सेमी सर्कुलर शेप का या सर्कुलर शेप का पूरा मोटा सा स्टेम होता है जिसमें बहुत सारे कांटे कांटे जैसे स्पाइंस निकले हुए रहते हैं, वो ग्रीन कलर का स्टेम जैसा होता है। तो क्या है कि वो जो कैक्टस का स्टेम है वो लीव्स क्या है, लीव्स ने अपने आप को स्पाइन में चेंज कर दिया है। वो जो मोटा सा हमें दिखाई देता है सेमी सर्कुलर शेप का, वो उसका स्टेम है और उसमें जो स्पाइंस है वो लीव्स है। तो जो स्टेम है वो फ्लैशी होता है, हाँ सचमुच में वो काफ़ी मोटा होता है, आप उसे बीच से काट सकते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप उसे काट सकते हैं। जैसे कि हम लोग एलोवेरा को हम लोग मिडिल से काट सकते हैं ना, लेयर बाय लेयर निकलता है, ऐसे कैक्टस के हम जो स्टेम को मिडिल से काट सकते हैं क्योंकि वो बहुत फ्लैशी होता है, थिक होता है और सक्लेंट होता है, उसमें वाटर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, वो सक्लेंट होता है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर पाता है वाटर को, अपने भीतर की सोक कर पाता है, इसीलिए उसमें वाटर स्टोर होता है ताकि प्लांट यूज़ कर सके जब तक बहुत दिनों तक प्लांट को वाटर नहीं मिले। तो और जो उसके पत्ते होते हैं उन्होंने अपने आप को कैसे चेंज कर दिया है, स्पाइंस में चेंज कर दिया है ना, कांटों में चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए हम एक प्रोसेस जानते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि प्लांट्स से वाटर वेपर लूज होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। जब एक्सेस वाटर वेपर प्लांट्स में, नॉर्मल एरियाज़ में, नॉट इन डेजर्ट, नॉर्मल एरियाज़ में जब प्लांट्स में एक्सेस वाटर वेपर हो जाता है तो वो लूज होके सराउंडिंग्स में चला जाता है। ठीक है, एक तरह से कहेंगे इवापोरेट होता है या चला जाता है सराउंडिंग्स में। प्लांट का वाटर वेपर, प्लांट के भीतर का जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज होकर चला जाता है बाहर। तो उसी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम से कम वाटर इवापोरेट हो उसके लीव्स से, इसीलिए लीव्स ने अपने आप को कांटों में बदल लिया है, स्पाइंस में बदल लिया है। ठीक है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय मिनिमाइजिंग द सरफेस एरिया ऑफ इवापोरेशन। देखिए इवापोरेशन जो है, वाष्पीकरण, वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। जितना बड़ा सरफेस मिलेगा इवापोरेट होने के लिए, जैसे कि आप एक बड़े बर्तन में पानी रखेंगे तो उससे ज़्यादा पानी इवापोरेट होगा, छोटे बर्तन से कम पानी और धीरे धीरे इवापोरेट होगा, है ना। तो जितना सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो ये जो है लीव्स जो है वो कांटों में बदल गए हैं ताकि उनसे इवापोरेशन, उन सरफेस एरिया बहुत कम है उनका, खुला एरिया उनको बहुत कम है जो कि एक्सपोज हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो उससे कम वाटर इवापोरेट होगा। ठीक है, अब है लीव्स का फंक्शन क्या होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि फंक्शन ऑफ लीव्स क्या है, कि वो फोटोसिंथेसिस करता है और नाइट टाइम में रेस्पिरेशन करता है, हम लोग जानते हैं। तो अब जो लीव्स को फंक्शन करना चाहिए था, चूँकि अब तो लीव्स यहाँ पे कैक्टस में स्पाइन में चेंज हो गए हैं, तो वो काम कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है। स्टेम ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है, इसीलिए स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का है। और क्या बात है एडाप्टेशन कैक्टस में, कि उसके रूट्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं एंड गो डीप इनटू द ग्राउंड, है ना, ज़मीन में बहुत गहराई तक नीचे तक जाते हैं ताकि ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको वह खींच सके ऊपर की तरफ और प्लांट को दे सके। ठीक है, तो बहुत लॉन्ग एंड डीप रूट्स होता है। अब हम आते हैं डेजर्ट एनिमल्स के एडाप्टेशन के लिए, कि डेजर्ट एनिमल को भी वैसे हार्श, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में वो कैसे रह पा रहे हैं, और लैक ऑफ वाटर भी है, पानी की वहाँ पे कमी भी है। ठीक है, तो सबसे कॉमन हम जब एनिमल की बात सोचते हैं डेजर्ट में हमें क्या दिखाई देता है, हमें कैमल दिखाई देता है। तो कैमल के बॉडी इस तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है, इस तरीके से उसका बॉडी स्ट्रक्चर है कि वह आराम से डेजर्ट के कंडीशन में रह सके। ठीक है, उस वैसे गर्मी वाले माहौल में, कम पानी वाले माहौल में वह रह सके। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा कैमल, ऊँट जो है उसके बहुत ही लंबे लंबे पैर होते हैं ना, लॉन्ग लेग्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी ज़्यादा नीचे, सैंड के जितने नीचे पास में रहेगा, उतना सैंड से जो गर्मी बाहर आ रही है वो उसके बॉडी को गर्म करेगा। तो उसके लेग्स बहुत लंबे हैं, तो नीचे लेग्स गर्म हो जाता होगा, उसका फीट गर्म होता होगा जब वो सैंड में चल रहा है, पर वह गर्मी ऊपर आते आते बॉडी तक आते आते कम हो जाती होगी, इसलिए उसका बॉडी गर्म नहीं होता है क्योंकि लॉन्ग लेग्स है। दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना भी नहीं आता कैमल्स को। क्यों? क्योंकि अगर पसीना आएगा तो वाटर ऑफ द बॉडी भी स्किन सरफेस पे आएगा और वहाँ से इवापोरेट हो जाएगा, वैसे वाटर लॉस होगा बॉडी में, है ना। इसी गर्मी के दिनों में हम लोग बहुत पानी पीते हैं ना, क्योंकि हमें स्वेटिंग से हमारा वाटर लॉस हो जाता है। तो कैमल को स्वेटिंग नहीं होता है, पसीना नहीं आता है, ताकि उनको वाटर लॉस नहीं हो सके। उनका जो डंग है, वो जो गोबर एक्सक्रीट करते हैं, वो ड्राई होता है, यानी उसमें भी वाटर नहीं जाता है।
और ड्राई गोबर बाहर निकलता है ताकि बॉडी से पानी बाहर ना चला जाए। ठीक है, इसी तरह यूरिन जो वो थ्रो आउट करते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, वो लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो वो बहुत कम यूरिन निकलता है उनका, बहुत कम अमाउंट में, और वो काफ़ी दिनों तक कैमल जो है डेजर्ट में बिना पानी के रह सकता है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी बहुत ही कम वाटर लूज़ कर रहा है एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलर बियर के बॉडी के भीतर स्किन फैट्स का एक लेयर होता है ना, ब्लैबर, जिसे हम लोग पढ़े थे पहले भी, पर है कि कैमल के बॉडी के भीतर फैट का कोई लेयर नहीं होता है। क्यों? अगर फैट का लेयर रहेगा तो बॉडी गर्म हो जाएगा, इसीलिए कैमल के बॉडी के भीतर फैट का लेयर कुछ भी नहीं रहता। उसके स्किन के नीचे की तरफ, अंदर की तरफ फैट का लेयर नहीं होता है। अब क्या है, उसका जो फीट है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। ठीक है, उसका लार्ज और बड़ा फीट होता है और ब्रॉड फीट होता है टू स्प्रेड द लोड। क्यों? क्योंकि कैमल का बॉडी बहुत भारी है ऊपर से और टांगे पतली पतली हैं, और उसका फीट अगर चौड़ा रहेगा तो वो उसके बॉडी लोड को, बॉडी के भार को सह पाएगा, है ना, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा उसका पैर। तो वो बॉडी के लोड को, और उस कैमल के ऊपर भी लोग और लोड रखते हैं, उनको टॉलरेट करने के लिए उसके फीट बड़े बड़े होते हैं, लार्ज फीट होते हैं, ताकि वो लोड को स्प्रेड कर सके। ठीक है, तो ये कैमल का अडॉप्टेशंस है। अब कुछ एनिमल्स हैं डेजर्ट में जिनके कि बहुत ही लंबे लंबे पैर नहीं होते, उनका बॉडी गर्म हो जाता है, जैसे कि रैट्स और स्नेक्स। हाँ, स्नेक्स भी बहुत पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नेक्स भी मिलते हैं डेजर्ट में। तो रैट्स और स्नेक्स ऐसे एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के डेजर्ट में जिनके लंबे पैर नहीं होते। तो वो क्या करेंगे, वह दिन के समय इसीलिए निकलते ही नहीं हैं, बरोज़ में, है ना, ज़मीन के नीचे के छोटे छोटे जो गड्ढे रहते हैं, वो गड्ढों में घुसकर वो अंदर ठंडक में रहते हैं। ठीक है, पूरी गहराई में, और ताकि उनको गर्मी नहीं लगे, इंटेंस हीट उनको फील नहीं हो, और जब रात के समय जब गर्मी कम हो जाती, ठंड पड़ जाती, तब वह अपने गड्ढों से बाहर निकलते हैं। तो ये सब एडॉप्टेशन इन डेजर्ट एरिया का एडॉप्टेशन हमने पढ़ा। अब हम लोग माउंटेन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन रीजन्स, दीज एरियाज आर जनरली वेरी कोल्ड एंड विंडी, दे मे रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Adaptation in plants. Polar habitat is an extreme cold environment. These conditions are usually found in the mountains. The plants are conical in shape so that rainwater slides off. Their leaves are needle shaped to reduce loss of water. The trees are tall. They have sloping branches to facilitate sliding of snow. Adaptation in animals. Adaptations to mountain regions are: snow leopard has thick fur on its body including feet and toes. A thick fat layer below the skin provides insulation. This protects from the cold when it works on the snow. Yak has long hair to keep it warm. The mountain goat has strong hoofs for running up the rocky slopes of the mountains. अब हम लोग माउंटेन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि माउंटेन रीजन्स कैसा रहता है, चूँकि ऊंचाई पे रहता है पहाड़ी एरिया, तो वो बहुत ही कोल्ड होता है, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, और विंडी होता है, वहाँ काफ़ी हवा भी चलती रहती है ऊपर, और वो बहुत ठंड भी पड़ती है। और ठंड के दिनों में वहाँ पे क्या होता है, ठंड के मौसम में स्नोफॉल भी होता है, बर्फ़ भी गिरती है, और हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों पे बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। अब अगर प्लांट्स के एडॉप्टेशन की हम बात करें कि प्लांट्स ने अपने आप को कैसे एडजस्ट करके रखा है, तो देखिए, पोलर हैबिटेट जो होता है, पोलर हैबिटेट क्या होता है, ज़्यादातर पोल्स के पास रहता है। ठीक है, तो पोलर हैबिटेट में बहुत ही ठंडा रहता है। अंटार्कटिका, आर्कटिक के पास जो है, ओशंस के पास बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट रहता है पोलर हैबिटेट में। तो इसी तरह का पहाड़ों के ऊपर भी पाया जाता है। पोलर हैबिटेट में जैसी ठंड रहती है, उसी तरह की ठंड पहाड़ों के ऊपर भी पाई जाती है। इसीलिए वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। आपने देखा होगा फर ट्री जो है ऐसे कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, क्यों? ताकि अगर स्नो उनके ऊपर गिरे तो स्लाइड करके नीचे गिर जाए। क्यों? अगर स्नो उस पर, बहुत सारा स्नो उस पर गिरते रहेगा, जमा होता रहेगा, तो वो बहुत हैवी हो जाएगा और प्लांट टूट सकता है। इसलिए स्नो स्लाइड होकर गिर जाए, इसलिए कोनिकल शेप का होता है, कोन के शेप का होता है। अगर आप आइसक्रीम कोन को उल्टा कर दे तो वैसे ही दिखाई देगा, ताकि रेन वाटर स्लाइड हो सके
लीव्स नीडल शेप के होते हैं, लीव्स बहुत ही पतले पतले होते हैं, ब्रॉड ब्रॉड लीव्स वहाँ दिखाई नहीं देते, नीडल के जैसे पतले पतले लीव्स होते हैं। टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, देखिए माउंटेन्स में भी क्या है ना, बहुत बारिश होती भी रहती है, पर वहाँ जब सूरज चमकता है वो भी काफ़ी तेज़ी से चमकता है, तो जो है गर्मी के दिनों में पानी लॉस नहीं हो जाए पौधों से, ठीक है, इसीलिए उनके भी नीडल्स जो होते हैं वो भी उनके जो लीव्स होते हैं वो भी नीडल शेप, सुई के जैसे पतले पतले होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं, और बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होते हैं। वहाँ पेड़ काफ़ी लंबे रहते हैं पहाड़ों के ऊपर, चूँकि वहाँ पे जो है सनलाइट भी मिल रहा है, बारिश भी हो रही है, तो पेड़ लंबे होते हैं काफ़ी, और स्लोपिंग ब्रांचेस होता है, ठीक है, चूँकि कॉनिकल शेप का है तो उसके जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस, शाखाएं जो है वो भी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हैं, कोन के जैसे स्लाइडिंग तरह की उनकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, जिससे कि स्नो स्लाइड करके नीचे चला जाए, बारिश भी स्लाइड करके नीचे जाए, क्योंकि पहाड़ी एरिया में बारिश भी बहुत होती है। अब हम लोग एनिमल्स की बात करें कि माउंटेनियस रीजन के एनिमल्स का कैसा एडॉप्टेशन होता है, तो वहाँ एक स्नो लेपर्ड होता है जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है, उसके बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और कुछ कुछ एरिया वाइट भी रहता है, तो उसकी बॉडी में बहुत ही थिक फर रहता है ना, जो फर है उसकी बॉडी में, उसका जो स्किन है, फर वो होता है जो लंबे लंबे बाल बाल जैसे रहते हैं, जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं फर वाला स्वेटर, तो उसे बहुत ही मोटा फर रहता है उसके बॉडी में, ठीक है। उसके जो फीट है, नीचे का पाँव है, पंजे हैं और उंगलियां हैं पैरों की, वहाँ पे भी बहुत ही मोटा फर का लेयर रहता है ताकि उसका बॉडी गर्म रह सके। साथ ही साथ उसके स्किन के नीचे थिक फैट का लेयर है, हाँ, फैट डिपॉजिट होकर उसके स्किन के नीचे रहता है, फैट का लेयर होता है जो कि उसको इंसुलेशन देता है। इंसुलेशन क्या होता है कि उसकी बॉडी की गर्मी जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं चली जाए, उसका बॉडी गर्म ही बन के रहे और बाहर की ठंडी उसके बॉडी के भीतर नहीं आ सके, इसीलिए वो फैट का लेयर इंसुलेशन देता है, ठीक है, मैंने हीट ट्रांसफ़र को रोकता है। तो जब वह स्नो लेपर्ड जब स्नो में घूम रहा होता है शिकार करने के लिए, तो उस ठंडे क्लाइमेट से उसको ये फैट का लेयर और थिक फर उसको बचाता है। इसी तरह याक हम लोग जानते हैं, याक आपने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े से बफेलो जैसे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जिस पर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं जो उसके बॉडी को गर्म रखता है ना। याक हैज़ लॉन्ग हेयर टू कीप इट वार्म, ठीक है, उसके बॉडी में लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि उसका बॉडी गर्म रह सके। इस तरह माउंटेन गोट आपने देखा होगा, कई बार हमने वीडियोज़ में भी देखा है कि माउंटेन गोट कैसा होता है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं, सींग लंबी लंबी होती है। तो माउंटेन गोट्स जो है, पहाड़ी बकरियां जो हैं, उनके जो पैर हैं, पैर के पंजे वगैरह हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ताकतवर रहते हैं, ताकि वो जो पहाड़ी रास्ता कैसा होता है, पथरीला होता है, रॉकी होता है, तो उन पहाड़ी रास्तों में वो आसानी से चढ़ सके, इसलिए उसके पैर हूव्स जो बोलेंगे, HOOVS हूव्स जो है, उनके पैर के पंजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये माउंटेन रीजन का एडाप्टेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। Grasslands. Predators kill other animals called prey for food. Predators are usually bigger and fewer in number than their prey. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. Look at the lion in the photograph. Why is it a good predator? It has sharp teeth and long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. Its eyes are at the front of the head to judge size and distance. Its light brown color helps it to hide in dry grassland when it hunts for prey. A deer is a prey animal that lives in forests and grasslands. It has large ears to know about the presence of predators. It has eyes on the side of the head for a wide field of view. Thus, it can look in all directions for dangers. The speed of the deer helps it to run away from the predators. It has strong teeth for chewing hard plants and stems in the forests. ठीक है, अब हम लोग ग्रासलैंड की बात करें। प्लेन एरिया जहाँ पे घास के मैदान है, घास बहुत सारे उग रहे हैं, जंगल एरिया जो है, हाँ, प्लेन एरिया लैंड पे है, वहाँ की हम लोग बात करें। प्रीडेटर्स किल अदर एनिमल्स कॉल्ड प्रे फॉर फूड। प्रीडेटर्स क्या है? वो जो शिकारी हैं जो कि दूसरे अपने शिकार को मार डालते हैं खाने के लिए, ठीक है, तो शिकारी कहलाएंगे प्रीडेटर्स और शिकार कहलाएंगे प्रे, ठीक है। तो प्रीडेटर्स जो है वो बहुत
बड़े बड़े साइज़ के रहते हैं, और मान लीजिए 10 हिरन है तो एक ही लायन रहेगा, ठीक है। फ्यूअर इन नंबर रहता है, शिकारी कम रहता है, शिकार ज़्यादा रहते हैं। शिकारी बहुत ही बड़े साइज़ का भी होता है, प्रेडेटर बड़े साइज़ का होता है उसके शिकार के कंपैरिजन में, ठीक है। लायन जो है वो ग्रासलैंड एरिया में रहता है, प्लेन एरिया में रहता है, जहाँ घास उगी रहती है, लंबी लंबी घास उगी रहती है, वहाँ पे लायन रहता है, ठीक है। और लायन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है, बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर एनिमल है, जो कि शिकार कर सकता है और दूसरे जानवरों को मार भी सकता है अपने खाने के लिए। दूसरे जानवर जैसे डियर, कई बार तो हम लोगों ने टीवी में वीडियोस में देखा है कि लायन जो है बफेलोस को भी मार डालता है खाने के लिए, ठीक है। तो वो डियर को मारता है, ठीक है। अब लायन अच्छा शिकारी क्यों है, अच्छा गुड प्रेडेटर क्यों है? अगर आप लायन को ध्यान से देखेंगे तो उसके मुंह में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ है, शार्प टीथ है, उसके दांत बड़े ही नोकीले और तेज़ हैं उसके दांत, और उसके जो आगे के पैर है, फ्रंट लेग्स है, उसके जो पंजे हैं, नीचे का जो फीट है, फीट में जो है उसके जो नाखून है, नाखून से मतलब नाखून तो नहीं कहना चाहिए, लॉन्ग क्लॉज जो है, लंबे लंबे दांत जैसे नाखून उसके पंजों से निकलकर बाहर आ जाते हैं, और जब वह चाहे उन्हें अंदर अपने पैर के भीतर घुसा भी सकता है। तो वो शिकार करेगा, शिकार को पकड़ने के लिए वो उन नाखूनों को बाहर निकाल आता है, फिर जब चाहे वो उन्हें वह अंदर भी अपने टोज़ के अंदर, अपने पैरों पंजों के भीतर घुसा भी सकता है, ठीक है। और दांत तो उसके बहुत नोकीले हैं, एक बार शिकार को पकड़ लिया तो छोड़ेगा ही नहीं। अगर आप लायन को ध्यान से देखेंगे तो उसका जो सर है, सर के सामने तरफ ही उसके आईज़ है, पूरा फ्रंट ऑफ द हेड में उसकी आँखें हैं, है ना, ताकि वह यह अंदाज़ा लगा सके कि जो उसका शिकार है वह कितनी दूरी पे है। सामने से देख के वो अंदाज़ा लगाता है कि शिकार कितनी दूरी पे है और कितने साइज़ का है, कितना बड़ा शिकार है, ये सब का वो पहले से अंदाज़ा लगाता है। बहुत ही बुद्धिमान जानवर भी होता है लायन तो, ठीक है। और लायन का कलर क्या होता है? ऑल्दो हम लोग वाइट लायन भी जानते होता है कहीं कहीं पे, जनरली लाइट ब्राउन कलर का होता है लायन, हल्के भूरे रंग का रहता है। क्यों? क्योंकि जो सूखी घास होती हैं वो भूरे रंग की होती है, येलोइश भूरी रंग की होती है, तो उन ग्रासलैंड के बीच में वो छिप कर रहता है ताकि अपने शिकार को पकड़ सके। तो वह घासों के बीच इस तरीके से मिल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भीतर एक लायन छिपा हुआ है, ठीक है, जब वो शिकार पर निकलता है। अब है हिरन जो है, डियर, वह एक शिकार है। लायन शिकारी था और हिरन जो है वो शिकार वाला जानवर है, जिससे लोग शिकार, जिसे बड़े जानवर लायन टाइगर जैसे जानवर जो है जिसका शिकार करते हैं। अब उसको क्या एडॉप्टेशन है, उसके बॉडी में क्या फीचर्स है कि वो अपने आप को बचा सके उस ग्रासलैंड एरिया में, जंगलों में अपने आप को वह कैसे बचा सके जहाँ वह रहता है। उसके लंबे लंबे कान होते हैं हिरन के, ठीक है, ताकि उसे जो है अपने शिकारी के आनों के आहट उसको पता चल जाए। लायन आसपास धीरे धीरे चल रहा हो या गुर्रा रहा हो तो उसे तुरंत पता चल जाए, इसलिए उसके लंबे लंबे कान होते हैं जिनसे वह सुन पाता है, ठीक है। और आप अगर देखेंगे उसकी जो आइज़ होती है, हिरन की आइज़ वो साइड साइड में है, जैसे लायन के फ्रंट में, हिरन की आइज़ साइड साइड में है, ठीक है, ताकि वह बहुत दूर वाइड व्यू ले सके, है ना। बहुत ही चौड़ा एरिया, बहुत ही चौड़े एरिया में वह पूरा व्यू कर सके, पूरा एक कोने से घूमते हुए दूसरे कोने तक वह देख सके कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू उसको मिल सके, बहुत ही चौड़ाई में वह देख सके और सारे दिशाओं में देख सके, सारे डायरेक्शंस में देख सके कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इसलिए उसकी आइज़ क्या है, ऐसे ऐसे साइड साइड में है। ऐसा लिजर्ड की भी आइज़ थोड़ी अलग टाइप की पोजीशन में रहती है ना। अब है कि डियर के पैर काफ़ी लंबे होते हैं और उसमें बहुत स्पीड होता है। डियर के बहुत ही स्पीडली दौड़ सकता है ताकि वो अपने आप को शिकारी से बचा सके। और डियर के जो दांत होते हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ताकतवर दांत होते हैं। क्यों? ताकि वो जो जितने भी पौधे हैं जंगल में, हार्ड प्लांट्स जिनके कि स्टेम सब बहुत हार्ड है, प्लांट के स्टेम सब, टहनियाँ बहुत हार्ड है, उनको भी बहुत चबा चबा के खा सके, इसीलिए उसके टीथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सब एडाप्टेशन डियर का होता है ग्रासलैंड और फॉरेस्ट एरिया में। अब हम लोग आगे एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे।
Some aquatic habitats. Many plants have adapted to live in excess water conditions. Such plants are called hydrophytes. As they live in abundance of water, there is no need for these plants to store or conserve water. These plants have poorly developed roots as it does not require water to reach its various parts. The stems are long and thin to withstand water currents. They also have air cavities to keep them afloat. They have short stem as it performs limited function of carrying nutrients to the other parts. The leaves of the water lily are broad, which not only allows the plants to keep afloat but also helps in transpiration. The leaves have waxy coating to protect the plant from rotting in water. Marshy or swampy areas are those where the soil is muddy and infertile. An interesting example of a plant that has adapted to marshy areas is the pitcher plant. This plant traps and digests insects in its pitchers. अब हम लोग कुछ एक्वेटिक हैबिटेट की बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने यह सीख लिया है, ऐसे अपना बॉडी को अडॉप्ट कर लिया है ताकि वो एक्सेस वाटर वाले कंडीशन में भी वह जीवित रह सके, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो वहाँ पे भी। तो ऐसे पौधे जो बहुत एक्सेस वाटर कंडीशन में भी अडॉप्टेशन डेवलप कर लिए हैं, ऐसे पौधों को कि हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, दे लिव इन अबंडेंस ऑफ वाटर, बहुत ही पानी में वह जीवित रहते हैं। इसीलिए ऐसे प्लांट्स को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने बॉडी में वाटर को स्टोर करे या कंजर्व करके रखे, बचा के रखे, ये सब की उनको ज़रूरत नहीं है। उनके जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, हल्की फुल्की होती है कि बस प्लांट को पकड़ के ज़मीन के साथ पकड़ के रखे, लेक के ज़मीन के साथ पकड़ के रखे। तो पुअरली डेवलप्ड रूट्स होती है क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है कि वो मिट्टी से पानी खींचकर अपने दूसरे पार्ट्स में पहुँचाए। रूट्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए रूट्स उतना डेवलप नहीं होता है उनका। स्टेम्स जो उनके होते हैं प्लांट के, वाटर प्लांट के स्टेम्स पतले पतले होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग एंड थिन होते हैं टू विथस्टैंड वाटर करेंट्स। जब ज़ोर से पानी लहर पे लहर बहती हुई आएगी, पानी की लहरें आएंगी तो जो है वह टूट नहीं जाए, इसलिए लंबी और पतली पतली उनकी स्टेम होती है कि उसके नीचे से पानी बह बह के निकल जाता है। ठीक है, और इसी साथ जो है एयर कैविटीज़ भी रहती है। ये प्लांट्स के स्टेम्स जो होते हैं खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं और उनमें एयर कैविटीज़ रहती है। ठीक है, एयर आना जाना कर पाता है ताकि वह बह पाए, वह पानी में इधर उधर बह सके, है ना, इसीलिए वो पानी में इधर उधर बह जाते हैं। और जो है इसीलिए कई बार उनका स्टेम जो है बहुत उनका जो रूट्स है वो इतना पुअरली डेवलप होता है कि वो उनको बहा के दूसरी जगह ले जाके फिर वहाँ पे मिट्टी में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो उनके जो आप देखे होंगे, जब वाटर प्लांट आप स्टेम को निकालेंगे आप देखेंगे अंदर से हॉलो रहता है, उनमें एयर कैविटी रहता है, हवा को आने जाने के लिए सुराखें रहती हैं ताकि पानी में वह बह सके वह पौधा। ठीक है, शॉर्ट स्टेम होता है उनके जो, देखिए स्टेम का बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है वहाँ पे वाटर प्लांट में, क्योंकि जो है वाटर प्लांट में वाटर ही उसको सपोर्ट कर रहा है खड़े रहने के लिए। स्टेम बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा है, उसका बस काम क्या है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है मिनरल सॉल्ट्स वगैरह प्लांट के अलग पार्ट्स में पहुँचाएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेम्स नहीं रहते हैं, उसके थोड़े थोड़े स्टेम्स रहते हैं। वाटर प्लांट में बहुत ज़्यादा स्टेम्स नहीं दिखाई देते हैं। अब जो है वाटर लिली एक होती है, लोटस जैसा एक पौधा है वाटर लिली, वाइट कलर का। ठीक है, उसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही ब्रॉड होते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। लोटस के भी हमने देखे ना गोल गोल शेप के चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, ताकि जो है वो जो है पानी में बहते बहते रहे, इधर उधर बहने में आसानी हो, इसलिए चौड़े चौड़े पत्ते रहते हैं। और जो है ट्रांसपिरेशन हो, चूँकि बहुत एक्सेस वाटर है तो प्लांट चाहता है कि कुछ वाटर वो इवापोरेट कर दे, वाटर वेपर के फॉर्म में छोड़ दे एटमॉस्फेयर में, इसलिए चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया वाले पत्ते होते हैं जिनमें से आसानी से ट्रांसपिरेशन होता रहे। ठीक है, और क्या है, लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है ना, एक मोम जो होता है, वैक्स जो होता है, वो ऐसा एक मतलब चिकनाहट वाला एक सब्सटेंस उनके लीव्स के ऊपर लगा रहता है, ऑयली सब्सटेंस, वैक्सी कोटिंग जिसको हम कह रहे हैं, ताकि पानी उस पर टिक न रह सके। अगर पानी उन पत्तों पे पूरा जम कर रह जाएगा तो पत्ते सड़ जाएंगे।
पानी उसके ऊपर से स्लाइड कर करके गिर जाए, इसलिए उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है ताकि वो सड़ नहीं जाए, रॉट नहीं करे। वाटर हायसिंथ लोटस और वाटर चेस्टनट, है ना, ये सारे पौधे हैं जो कि पानी में रहते हैं। अब मार्शी और स्वैम्पी एरिया क्या होता है? जहाँ पे कि मतलब जो दलदल वाला एरिया रहता है, जहाँ मिट्टी वाली सॉइल रहती है, मिट्टी वाली मतलब कि मडी सॉइल रहता है, पानी और मिट्टी मिली हुई जो दलदल एरिया होता है वैसा वाला सॉइल जहाँ रहता है, और वो सॉइल इनफर्टाइल होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं दलदल वाले एरिया में, मार्शी एरिया में। ठीक है, एक प्लांट जो कि मार्शी एरिया में भी अडॉप्ट करके रहना सीख गया है वो है पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट है, और क्या होता है वो वहाँ जो इंसेक्ट्स उड़ते रहते हैं मार्शी और स्वैम्पी एरिया में, उनको वह अपने पिचर में, अपने एक लंबा उसका जग जैसा शेप का है, उसमें वो उनको ट्रैप कर लेता है, ऊपर से उसका ढक्कन लग जाता है और वो उस प्लांट को डाइजेस्ट कर लेता है अपने ही पिचर में, है ना। पिचर मतलब घड़ा कहेंगे, मटका कहेंगे, तो मटका उसका जो रहता है उसी में वह जो है घड़ा मटका, आप समझ रहे हैं ना, जो ठंड के दिन में पॉट सब, अर्दन पॉट्स होता है जिसमें पानी रखते हैं, उसी टाइप का उसका जग जैसा शेप का रहता है, उसमें वो इंसेक्ट को अंदर घुसा लेगा और फ्लैप बंद कर देगा और धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेगा, उसको खा के ख़त्म कर देगा। तो वो मार्शी एरिया में पिचर प्लांट मिलता है। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ओशंस और पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशन, पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। Oceans are marine water habitats. Many sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. Octopus and squids do not have streamlined shape. They inhabit the deeper layer of ocean near the seabed and catch its prey. They make their body shape streamlined while moving in water. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. Whales and dolphins do not have gills. They breathe in air through nostrils or blowholes located on the upper parts of their heads. This allows them to breathe when they swim near surface of water. They come out to the surface to breathe in air. They can stay inside the water for a long time without breathing. Ponds and lakes. Ponds, lakes, rivers are freshwater aquatic habitats. There are three types of aquatic plants. Free floating. These aquatic plants float on water. Their roots are very small and they freely float on the surface of water. Example, water hyacinth, etc. Partly submerged. These aquatic plants are fixed to the water bottom by their roots. The stem grows up to the surface. Leaves and flowers float on the surface of water. Example, lotus. Completely submerged. These aquatic plants are totally submerged in water. All parts of such plants grow under water. Frogs usually have ponds as their habitats. They can stay both inside the pond water as well as on land. They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. They have webbed feet which help them swim in water. अब हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट की बात करेंगे, तो ओशंस की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे। ओशंस क्या है? मैरीन वाटर हैबिटेट है। मैरीन वाटर क्या है? जो है समुद्री पानी है, मतलब नमकीन पानी है, वैसा हैबिटेट है वह। ठीक है। अब बहुत सारे एनिमल्स जो सी के एनिमल या वाटर के एनिमल्स होते हैं, उनका क्या होता है, हम लोग जानते हैं फिश वगैरह का स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है ताकि वह पानी में आसानी से मूव कर सके। पर दो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ओशन में रहते हैं, वो है ऑक्टोपस और स्क्विड है, जिनका कि स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता है। ठीक है। तो वो कहाँ रहते हैं? वो ओशन में बहुत ही नीचे गहराई में पूरा रहते हैं, डीपर इन द डीपर लेयर ऑफ ओशन रहते हैं, बहुत नीचे नीचे रहते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस ऊपर दिखाई नहीं देते, डीपर लेयर ऑफ ओशन में रहते हैं। कहाँ पे? समुद्र के तल पे, जहाँ पे समुद्र में नीचे मिट्टी है, लास्ट पोर्शन है, वहाँ पे वो रहते हैं। नियर द सी बेड वो लोग रहते हैं, और वहीं वो अपने शिकार को पकड़कर वह खाते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब उनको पानी में इधर उधर मूव करना है, तब वह अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में ले आते हैं, और नॉर्मली ऐसे खुले शेप में रहते हैं। ठीक है। वो सांस कैसे लेते हैं? उनके बॉडी में गिल्स बना हुआ है उनके बॉडी में, ताकि वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को सांस ले सके, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सके। अब और कुछ मछलियाँ हैं जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन्स है, उनके बॉडी में गिल्स नहीं है, बाकी सभी मछलियों में है, पर वेल्स और डॉल्फिन्स में गिल्स नहीं है। फिर वो सांस कैसे ले पाती हैं? तो
उनके जो बॉडी में ऊपर साइड में अपर लेयर पार्ट ऑफ देयर हेड, उनका जहाँ सर है, सर के ऊपर साइड में क्या है, ब्लो होल्स बना हुआ है। हाँ, 2 छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, या नॉस्ट्रिल उनको कह लेंगे। जैसे हमारे नाक का नॉस्ट्रिल होता है, उसी तरह उनका भी ब्लो होल्स उनके सिर के ऊपर तरफ में बना हुआ है। और आप देखे होंगे वीडियोज़ में कि वो कई बार पानी में ऊपर आती हैं, है ना। क्यों ऊपर आती हैं? वो ब्रीथ करने के लिए ऊपर, वो जाके वो हवा का ऑक्सीजन को वो लेती हैं, वो ब्रीथ करने के लिए ऊपर आती हैं। सरफेस ऑफ वाटर, पानी के ऊपर के लेयर पे आती हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे आती हैं ताकि वो हवा का ऑक्सीजन को वह ले सके, ठीक है, और एयर में वो ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, इसीलिए वो आती हैं। और फिर उसके बाद वह नीचे चल जाती है। वो काफ़ी देर तक नीचे रह सकती हैं बिना सांस लिए, फिर काफ़ी देर के बाद वह फिर ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। अब मछलियों में हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि मछलियों में स्लिपरी स्केल्स होता है ना। उनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, उनका स्किन होता है वो स्लिपरी होता है, ताकि दूसरे एनिमल्स, सी एनिमल्स उनको आसानी से पकड़ नहीं सके, वो पौधों में फंस के नहीं रह जाए, स्लिप करके निकल जाए, ठीक है। डॉल्फिन्स वगैरह, डॉल्फिन और ये जो है वेल, उसमें तो ब्लो होल या नॉस्ट्रिल होता है ब्रीथ करने के लिए। वेल्स का अपना फ्लिपर्स होता है, जैसे मछलियों के फिन्स होते हैं साइड में छोटे छोटे, उसका फ्लिपर होता है, उसके भी लंबे लंबे पंख जैसे वेल का फ्लिपर होता है, जिसकी मदद से वह स्विम कर पाती है, ठीक है। अब तो ये तो ओशन जो था वो मैरीन वाटर हैबिटेट था। इसी तरह पॉन्ड्स और लेक्स जो है वो फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट है, जहाँ की ताज़ा पानी रहता है। हमेशा अंडरग्राउंड से पॉन्ड्स, लेक्स में नया पानी आता रहता है, ज़मीन के नीचे से फ्रेश वाटर आता रहता है, या रिवर में तो फ्लोइंग वाटर ही रहता है। तो ये सब फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट्स है, ठीक है। 3 तरह के एक्वेटिक प्लांट हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ रहे थे। 3 तरह के एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाले 3 तरह के पौधे हैं। पहले हैं फ्री फ्लोटिंग, जो पूरे आसानी से फ्लोट करते रहते हैं, पानी में इधर से उधर फ्लोट करते रहेंगे, बहते रहेंगे, ठीक है। उनका रूट्स बहुत ही छोटा होता है और वो ज़मीन में जुड़ा हुआ नहीं रहता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है उनका, इसीलिए वो आसानी से पानी में इधर से उधर फ्लोट करते रहते हैं, पानी के ऊपर के ही सरफेस पे वो फ्लोट करते रहते हैं। एग्जाम्पल वाटर हायासिंथ है। हाँ, देयर रूट्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे रूट्स हैं उनके, एंड दे फ्रीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हायासिंथ, ठीक है। तो ये फ्री फ्लोटिंग पौधे हुए हैं जो आसानी से इधर से उधर बह रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। पार्टली सबमर्ज्ड क्या है कि कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी वाले ऐसे पौधे हैं जिनका कि रूट्स ज़मीन में फिक्स्ड है, पानी के नीचे के मिट्टी में उनका रूट्स फिक्स्ड है, ठीक है। तो और उनकी जो शाखाएं हैं, स्टेम है, वह ऊपर सरफेस तक आ गई हैं, ठीक है। और उनके ऊपर, पानी के ऊपर के सरफेस पे हमको उनके पत्ते दिखाई देते हैं, फ्लावर दिखाई देते हैं। तो वो बस इधर उधर हल्का हल्का हिल पाते हैं, पूरी तरह से फ्लोट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लोटस है, वो इसी एरिया में इधर उधर थोड़ा मूवमेंट करेगा पर पूरा फ्लोट करके दूसरी जगह नहीं जाएगा। और कुछ ऐसे जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, मतलब पूरी तरह से पानी के भीतर ही घुसा हुआ है पूरा प्लांट। प्लांटली सबमर्ज में क्या है, रूट्स नीचे तक फिक्स है और पत्ते और पौधे, फूल बाहर की ओर दिख रहा है। पर कुछ है जिसके रूट्स भी पानी के अंदर है, मिट्टी में फिक्स है, और पत्ते, फूल सब पानी के अंदर है, ठीक है। वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड कहलाते हैं। दे ग्रो अंडर वाटर, वो पानी के भीतर ही बढ़ते रहते हैं। अब एक एनिमल है फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्यों? क्योंकि वह पानी में भी जीवित रह सकता है और ज़मीन पे भी जीवित रह सकता है। जब वह पानी में जाता है वह गिल्स यूज़ करता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेने के लिए, और जब वह एयर में आता है तो हम लोग के जैसा वह ब्रीथ करता है, ठीक है। वो पानी के भीतर भी रह सकता है। जनरली वो पॉन्ड्स में दिखाई देता है, फ्रॉग्स नदियों में नहीं दिखाई देता ज़्यादा, पॉन्ड्स में दिखाई देता है। हाँ, और वह लैंड पे भी रह सकता है, तालाबों में दिखाई देता है और ज़मीन पे दिखाई देता है। अब उनके जो पीछे के पैर होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, ताकि वह जो है जंप करके अपने शिकार को पकड़ सके। तितलियाँ, इंसेक्ट्स वो खाता है ना, तो वो जंप जोर से करता है, तेज़ी से बहुत लंबी छलांगे लगाता है ताकि वह अपने शिकार को पकड़ सके। और उसका जो फीट होता है वो वेब्ड होता है। वेब्ड जैसे कि आपने डक में देखा होगा, डक का फीट क्या होता है, चौड़ा ऐसा होता है, फैला हुआ रहता है और एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ रहता है फीट उनका पूरा अच्छी तरीके से। तो वैसे वेब्ड फीट फ्रॉग का भी रहता है, ताकि वह पानी में स्विम करे, पानी में तैरने के लिए उसका फीट वेब्ड रहता है।
आगे पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स अराउंड अस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। Food. All living things need food to stay alive, which gives energy to grow, for repair, and for the life processes. Plants make their own food with the help of sunlight, air, and water. Whereas animals depend on plants and their products for their food. Growth. We must have grown taller during these years. Young ones of animals also grow into adults. Example, pups grow into adult dogs. Plants also grow. Growth seems to be common to all living things. Respiration. It is a chemical process in which food taken by an organism combines with oxygen to release energy, carbon dioxide, and water. All living things undergo respiration to obtain energy from food. Breathing is a part of process of respiration. The process of taking air into the lungs through nose and then expelling it through nose is called breathing. Earthworms breathe through their skin. Fishes use gills to obtain dissolved oxygen from water. Insects have tiny pores on their body. Plants exchange gases through tiny pores called stomata. Plants produce their food only during daytime, whereas respiration takes place during day as well as night. The amount of oxygen released in the process of food preparation is much more than the oxygen used in respiration. अब जीवित प्राणी हमारे चारों तरफ, ठीक है, उनका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जो जीवित प्राणी होते हैं। पहला है खाना। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको जीवित रहने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। एनर्जी कहाँ से मिलता है? वो जो फूड खाते हैं उससे उन्हें एनर्जी मिलता है, और उनका जो सेल्स और टिश्यू है वो रिपेयर होता है। कंटिन्यूसली रिपेयर प्रोसेस बॉडी में होता रहता है ना, टूटता रहता है, रिपेयर होता रहता है सेल्स, टिश्यूज़, और उनका जितना भी लाइफ प्रोसेसेस है कि वो मूवमेंट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, स्लीप करेंगे, वो सब में ये एनर्जी यूज़ होता है, ठीक है। तो प्लांट्स सारे लिविंग बींग्स को खाने की ज़रूरत है। प्लांट्स तो हम जानते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, और उसमें वो सनलाइट सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, ये सब की मदद से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जबकि एनिमल्स जो है प्लांट पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, है ना। डियर प्लांट को खाएगा तो उसकी भूख मिटेगी, डियर को लायन खाएगा तो उसकी भूख मिटेगी। यानी लायन भी इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, डियर भी इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। ग्रोथ। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेक्स्ट जो फीचर है सारे जीवित प्राणियों का, वो ग्रोथ है। सारे जीवित प्राणी बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इधर कुछ सालों में बच्चे भी बढ़े हैं, 6-7 में आते थे बच्चे लंबे होने लगते हैं ना, बढ़ने लगते हैं। तो सारे जो जीवित प्राणी हैं, पौधों के हों कि जानवरों के हों, वो धीरे धीरे बढ़ के एडल्ट बन जाते हैं, बड़े लोग जैसे बन जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, और वो बच्चे नहीं रहते हैं। छोटे छोटे जो कुत्तों के पप्स होते हैं, डॉग्स के, वो धीरे धीरे बढ़ के पपीज़ क्या होते थे, डॉग्स बन जाता है। इस तरह प्लांट्स भी, छोटे छोटा पौधा होता है वो बढ़ बढ़ के बड़ा बड़ा ट्री बन जाता है। तो ग्रोथ एक कॉमन चीज़ है जो सारे जीवित प्राणियों में दिखाई देता है कि सारे जीवित प्राणी ग्रो करते हैं, बढ़ते जाते हैं। रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है वो एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। वो एक तरह का रिएक्शन हम कहेंगे, या केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि जो है हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो भी जीवित प्राणी खाना खा रहे हैं, ठीक है, वह खाना जो है वह बॉडी में हम लोग जब सांस लिए हैं, ऑक्सीजन के साथ वह रिएक्ट करके एनर्जी में चेंज होता है। वो खाना का न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी में चेंज होता है। एनर्जी भी निकलता है रिएक्शन के समय, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी, ये तीनों चीज़ निकलता है जब फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी में ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। तो सारे जो जीवित प्राणी हैं सब में ये केमिकल प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है, केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन सब में होता है। वो जो खाना खाते हैं वह ऑक्सीजन के साथ बॉडी में मिलता है और एनर्जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। अब यही रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीथिंग। ये तो बहुत सारे स्टेप्स में होता है, तो इसका एक पहला पार्ट क्या है, ब्रीथिंग है, सांस लेना, ठीक है। जब हम लोग अपने नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं, नाक के थ्रू सांस लेते हैं और फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं नाक के थ्रू, उसी प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। तो सब लोग अलग अलग, हम ह्यूमन बीइंग्स जो है अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, पर जो अर्थवर्म होते हैं ना, मिट्टी में चलने वाले जो केचुए होते हैं, वो उनके स्किन के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। मछलियाँ क्या यूज़ करती हैं, गिल्स यूज़ करती हैं ताकि वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन को वह ले सके, ठीक है। इंसेक्ट्स का होता है, जो छोटे छोटे छेद रहते हैं उनके बॉडी में, कीड़ों में, जिससे कि वह सांस ले सके। आपने कॉकरोच के बारे में पहले भी पढ़ा है। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के पत्तों में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, टाइनी पोर्स रहते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उसकी मदद से वह गैसेस को एक्सचेंज करते हैं
एयर में, ठीक है। प्लांट्स दिन के समय क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना बनाता रहता है, जबकि वह रात के समय में वह क्या करता है, रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात के समय होता है, वह दिन में भी होता रहता है और रात में भी होता है रेस्पिरेशन, पर फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में ही होता है, ठीक है। अब जो है प्लांट्स जब खाना बनाते समय जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं उस समय ऑक्सीजन कम उनको यूज़ होता है, पर रेस्पिरेशन के समय जो है क्या है कि प्लांट्स जब रेस्पायर कर रहे हैं तब उनको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर वह जब खाना बना रहे हैं तब उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यही बता रहा है आपका बुक कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, अच्छा रिलीज्ड है, ओके ओके। हम लोगों ने पहले भी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि जब जो है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, एयर सबको यूज़ करके खाना बनाते हैं और बदले में वो क्या छोड़ते हैं, वो एयर में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। अब रात के समय प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं ब्रीथिंग करने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो जो ऑक्सीजन जितना वो छोड़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के समय वह बहुत ज़्यादा है, जो वो रिलीज़ कर रहे हैं बाहर वह बहुत ज़्यादा है, जबकि वो जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वह कम है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इज़ मच मोर देन द ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ज़्यादा ऑक्सीजन वह रिलीज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के समय, पर रेस्पिरेशन के समय कम ऑक्सीजन वह यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, यह पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का, और थोड़ा सा बाकी है, हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। तो यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, जो कि आपका 9th चैप्टर है, यह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जल्दी ही जाएंगे फिर 10th चैप्टर में आपके जाएंगे, कि जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, सब लोग मिलकर सब्सक्राइब भी करिए और आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।